Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss one of the very important part related to the general financial rule. So you know that just recently, 10th July 2024, Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Procurement Policy Division brought amendments in General Financial Rules 2017. So these rules, actually one rule 133 related to the works, rule 139 execution of works, 149 JM, 154 without quotation, 155 local purchase committee, 161 advertised tender, 162 limited tender, 170 related to the transparency and competition, 183 related to the consulting services, 201 non-consulting services. So in these rules, the Ministry of Finance, Department of Expenditure, Procurement Policy Division brought changes. So today I will discuss all the parts, and it is very important one. In examination, actually related to the amount, related to the estimation, related to the cost is coming, it is very important one. So you patiently just you see the video, listen the video, and you can get complete information. It is very important one. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get very effective and up-to-date videos in subsequent time. So I do not want to waste more time. Now I am going to discuss amendment in General Financial Rules 2017, right? So you see, first one I will discuss amendment in GFR's works. First I will discuss. So related to the work, actually GFR rule 133 is important one. So 133 subsection 1, 133 subsection 2 and 133 subsection 3. Again, I told that this amendment actually brought by the Ministry of Finance, Department of Expenditure on dated 10th July 2024. You see, always you see the right hand side, it means right hand column, it is related to the amendment rule. It is given left side column, it is existing rule, and right side column, it is amendment rule. So there will be no confusion, right? You see, rule 133 subsection 1, पहले क्या था, सपोज कोई डिपार्टमेंट और सबऑर्डिनेट ऑफिसेस एग्जीक्यूट द रिपेयर वर्क, देन जो अमाउंट था अप टू ₹30 लाख, यदि जो वर्क है उसका जो एस्टिमेशन, जो रिपेयर वर्क है, बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट वन रिपेयर वर्क्स, जो रिपेयर वर्क से सपोज if it is executed by the department or its subordinate offices and the cost up to ₹30 lakhs, right? So up to ₹30 lakhs, the concerned department or its subordinate offices can execute the work. वो 30 lakhs तक था, मगर अभी अमेंडमेंट आ गया. इट इज ये राइट साइड देखिए, मैं सभी समय राइट साइड अमेंडमेंट है. तो अभी जो बेसिकली रिपेयर वर्क्स, सो अप टू ₹60 lakhs, you see, up to ₹60 lakhs, the concerned department or its subordinate offices can execute the work. Okay, there is no need of help of Central Public Work Department or State Public Work Department or any other organization. The department itself or its subordinate offices, actually themselves, they can execute the work. ठीक है, तो पहले अप टू 30 लाख. सो ये बेसिकली रिपेयर वर्क्स के ऊपर है, रिनोवेशन के ऊपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? तो अभी कितना अमाउंट तक यदि रिपेयर वर्क होता है डिपार्टमेंट में और उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसेस में, तो अभी कितना अमाउंट तक एक्चुअली खुद डिपार्टमेंट और खुद उसका जो सबऑर्डिनेट ऑफिस है, कितना अमाउंट तक वो वर्क को एग्जीक्यूट कर सकता है, ये अभी अप टू ₹60 लाख. पहले ₹30 लाख था, नाउ इट इज इंक्रीज्ड टू अप टू ₹60 लाख. ठीक है. और जो प्रोसीजियर दिया है, आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजियर, यहां पर रूल 139 है. रूल 139 क्या है ना, प्रोसीजियर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क.
सो प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, जब कंसर्न डिपार्टमेंट और उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसेस वो कोई भी वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या रूल है? उसमें रूल है, फर्स्ट वन, जो वर्क का एस्टिमेशन देना है, वो वर्क का डिजाइन क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होना चाहिए, और कितना खर्च होगा, एक्सपेंडिचर, इट मस्ट बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये सब होता है जो 131, इट इज रिलेटेड टू द प्रोसीजर रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, एस्टिमेशन, डिजाइन, अप्रूवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एक्सपेंडिचर एक्चुअली इट इज एक्सेप्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये सब आ जाते हैं। 159 जो बोलता है जीएफआर का, ई पब्लिशिंग है। जब भी कोई वर्क एग्जीक्यूट किया जाएगा उसको पब्लिश किया जाएगा, तो डिपार्टमेंट खुद का वेबसाइट में पब्लिश करेगा, और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, जेम है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, खुद का वेबसाइट है, ठीक है। वो उसमें अपलोडेड होगा, जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड होगा, और डिक्लेयर किया जाएगा कि अभी डिपार्टमेंट और कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस है, उसका खुद का वेबसाइट में डिक्लेयर करेगा कि ये वर्क एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बिडिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, ठीक है। और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, CPPP है, CPPP सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इसमें पब्लिश होगा। तो ई पब्लिशिंग जो है 159 जीएफआर रूल, अब देखिए 159 वो बेसिकली ई पब्लिशिंग है। 160 जो रूल जीएफआर रूल 160 है वो ई प्रोक्योरमेंट है। ई प्रोक्योरमेंट मीन्स जैसे आप पब्लिश किया वैसे ही ऑनलाइन में सब अप्लाई करेंगे, जो भी बीडर्स है वो ऑनलाइन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। बीडर्स एक्चुअली तो फर्स्ट पब्लिश कहां पर हुआ भाई, खुद का वेबसाइट में, डिपार्टमेंट का खुद का वेबसाइट में, और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में पब्लिश हुआ। और जब तो बीडर्स ने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करेंगे, वो पूरा डाटा दिया होगा कि जो पीरियड रहेगा, ओपनिंग डेट, और किस डेट में एक्चुअली बीड ओपन होगा, डिटेल्स रहेगा, और क्या क्या जो प्रोसीजर्स है वो दिया जाएगा। और जो बीडर्स अप्लाई करेंगे वो थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। वही ई प्रोक्योरमेंट, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद बीड ओपन होगा, क्लियर। तो ये ई प्रोक्योरमेंट में आ जाता है, जो जीएफआर रूल 160 में क्लियरली है। तो ईच एंड एवरी टाइम द बीडर्स दे कैन अप्लाई द बीड एक्चुअली थ्रू ऑनलाइन, ठीक है। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया, यदि कोई डिपार्टमेंट और उसका कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस वो भी अप टू ₹60 लाख तक खुद वर्क को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। पहले वो अप टू ₹30 लाख था, मगर अभी इंक्रीज टू अप टू ₹60 लाख, क्लियर है। ये रूल 133 सबसेक्शन 1 है। चलो नेक्स्ट वन, तो फिर अगेन अमेंडमेंट आ गया, रूल 133 सबसेक्शन 2। ये जो सबसेक्शन 2 में क्या हुआ, ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में at its discretion assign repair works estimated to cost above ₹60 lakhs and original or minor works of any value, तो ग्रेटर देन, अभी जो अमेंडमेंट होने के बाद ये राइट साइड कॉलम को देखिए, ग्रेटर देन 60 लाख, पहले क्या था ना, ग्रेटर देन 30 लाख था, मगर ये अभी अमेंडमेंट हो चुका है, ग्रेटर देन 60 लाख। जब रिपेयर वर्क और एनी, आपको यहां पर याद रखना है, कोई ओरिजिनल वर्क है, कोई न्यू कंस्ट्रक्शन है, तब हम वो वर्क को सेंट्रल पब्लिक CPWD, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की, कोई सिविल और जो इलेक्ट्रिकल वर्क्स, बेसिकली मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की, बॉर्डर सपोज रोड ऑर्गेनाइजेशन की, सपोज रेलवे का खुद का कंस्ट्रक्शन विंग है, पोस्टल का खुद का कंस्ट्रक्शन विंग है, डिफेंस डिपार्टमेंट्स का खुद का कंस्ट्रक्शन विंग है, तो वो करेंगे। तो कोई भी आपको याद रखना है, कोई भी न्यू वर्क वो चला जाएगा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। मैं उसको और एक बार क्लैरिफाई कर देता हूं, फिर हम जाएंगे। फर्स्ट न्यू वर्क, न्यू कंस्ट्रक्शन, कोई ओरिजिनल वर्क है, न्यू वर्क है, ये रिपेयर वर्क नहीं है, ये न्यू वर्क है, न्यू कंस्ट्रक्शन है। तो न्यू कंस्ट्रक्शन केस में
सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसे है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है, और जो रेलवे का खुद का कंस्ट्रक्शन विंग है, पोस्टल का है, ठीक है, तो उनको काम मिल जाएगा, ठीक है। खुद डिपार्टमेंट वो वर्क को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, कोई न्यू वर्क, न्यू कंस्ट्रक्शन कि कोई सपोज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको जाएगा, मगर कोई न्यू वर्क, याद रखना है, कोई न्यू वर्क, कोई न्यू कंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द डिपार्टमेंट इटसेल्फ, ही कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिसेस, वो खुद नहीं कर सकते, इनको जाएगा न्यू वर्क। तो नेक्स्ट है रिपेयर वर्क। अभी जो अमेंडमेंट होने के बाद ग्रेटर देन 60 लाख है, यदि रिपेयर वर्क, ये रिपेयर वर्क का बात आ रहा है, रिपेयर वर्क केस में यदि ग्रेटर देन 60 लाख है तो ये वर्क एक्चुअली चला किसको हम देखेंगे ना, बेसिकली पब्लिक वर्क्स में अभी बताया सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यानी कंस्ट्रक्शन विंग ऑफ रेलवे, कंस्ट्रक्शन विंग ऑफ पोस्टल, कंस्ट्रक्शन विंग ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट्स, तो ये चला जाएगा। तो ये ग्रेटर देन 60 लाख है तो डिपार्टमेंट खुद उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, कि कोई डिपार्टमेंट का कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस है उसको खुद वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, वो वर्क चला जाएगा कोई पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो, चाहे स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क है तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस हो, चाहे बॉर्डर रोड है तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा, और यदि रेलवे का खुद का कंस्ट्रक्शन विंग है, मैं अभी बताया पोस्टल डिफेंस, ठीक है, उनको जाएगा। तो मगर इसी केस में यदि रिपेयर वर्क ग्रेटर देन 60 लाख होता है तब डिपार्टमेंट खुद नहीं कर सकता, खुद वर्क को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। क्लियर? तो पहले क्या था, पहले था कि ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ये 30 लाख से कॉस्ट अबव 30 लाख, इसको आपको याद रखना है। पहले था ग्रेटर देन 30 लाख, मगर अभी ये ग्रेटर अमेंडमेंट होने के बाद ग्रेटर देन 60 लाख, इसको याद रखना है। थोड़ा भूल में 60 लाख हो गया, यहां पर ग्रेटर देन 30 लाख, क्योंकि पहले जो था अप टू 30 लाख वो खुद एग्जीक्यूट करेगा डिपार्टमेंट और सबऑर्डिनेट ऑफिसेस, मगर अभी वो अप टू 60 लाख डिपार्टमेंट खुद एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो पहले ग्रेटर देन 30 लाख था, ये नहीं है, अभी ग्रेटर अमेंडमेंट होकर ग्रेटर देन 60 लाख हो गया। तो डिपार्टमेंट और इट्स subordinate offices, they cannot execute the work by themselves. Okay, that work assigned to CPWD, State Public Works Department, ठीक है, और other central government organizations authorized to carry out civil or electrical works such as military MES, military engineering service, कोई बॉर्डर रोड से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स कंस्ट्रक्शन विंग्स ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवेज, डिफेंस, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इससे देख लीजिए इनका कंस्ट्रक्शन विंग है, कंस्ट्रक्शन विंग्स ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवेज, डिफेंस, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट एंड स्पेस, तो उनका खुद का कंस्ट्रक्शन विंग है। तो ये अभी जो सेकेंड में यदि आपको याद रखना है, ग्रेटर देन 60 लाख होता है रिपेयर वर्क का जो एस्टिमेशन है ग्रेटर देन 60 लाख होता है, तब वो वर्क को डिपार्टमेंट खुद नहीं कर सकता, ठीक है, कि कोई डिपार्टमेंट का सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है वो खुद नहीं कर सकता, वो चला जाएगा सीपीडब्ल्यूडी को, कि स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को, कि कोई बॉर्डर रोड सर है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, और ये जो खुद का कंस्ट्रक्शन रेलवे, पोस्टल, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, डिफेंस की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की स्पेस, उनका खुद का कंस्ट्रक्शन विंग है, तो वो कंस्ट्रक्शन विंग को जाएगा, ठीक है। ये पहले ये था ग्रेटर देन 30 लाख, अभी ग्रेटर देन 60 लाख हो गया, ठीक, इसको थोड़ा ध्यान देना है। और ये जो रूल आ गया 133 सबसेक्शन 3 में भाई सेम थिंग है, ग्रेटर देन 60 लाख रिपेयर वर्क, वही रिपेयर वर्क के ऊपर, ठीक है, ग्रेटर देन 60 लाख,
वो सपोज पीएसयू के पास जाएगा, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयूज है, ओके, कोई ऑर्गेनाइजेशन सब पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो उनको इनवाइट करेंगे। थर्ड वन सेम थिंग है, मगर यहां पर क्या है, वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट नहीं है, वो सब ऑटोनोमस डिपार्टमेंट है। कोई पीएसयूज का कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पास जाएगा। तो वही दे दिया as an alternative to 133 rule 133 subsection 2, a ministry or department may award repair works estimated to cost above rupees 60 lakhs and original works of any value to any public sector undertaking set up by the central or state government, any public sector undertaking set up by the central or state government to carry out civil or electrical works, or to any other central or state government organizations or PSU which may be notified by the Ministry of Urban Development for such purpose after evaluating their financial strength and technical competence। तो यहां पर जो सबसेक्शन 3 में बेसिकली पीएसयू का बात आ जाता है, ठीक है। For the award of work under this sub rule, the ministry or department shall ensure competition among such PSUs or organizations. This competition shall be essentially on the lump sum service charge। वो जो सर्विस चार्ज करेंगे कि ये वर्क को हम करेंगे और हमको इतना पैसा चाहिए, कि इतना, सपोज एक बोलेगा सपोज मुझे 3 करोड़ चाहिए, कि कोई बोलेगा मुझे सपोज वही सेम वर्क को 2.8 करोड़ चाहिए। ऐसे कंपटीशन होगा, तो जो लीस्ट प्राइस चार्ज करेगा, तो उस जो लीस्ट एक्चुअली लॉन्ग सम सर्विस चार्ज करेगा उसको अवार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो तीनों में एक्चुअली 133 का और एक बार थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। ये जो 133 सबसेक्शन 1 है, बेसिकली जो है रिपेयर वर्क है, मैं यहां पर रिपेयर लिख दिया। तो अभी जो अमेंडमेंट होने के बाद अप टू 60 lakhs द डिपार्टमेंट itself or its subordinate offices they can execute the work। वो खुद उनका वर्क को एग्जीक्यूट करेंगे, लिमिटेड टेंडर इनवाइट करेंगे और ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर और ओपन टेंडर, उसका भी अमाउंट है आगे में डिस्कस करेंगे। तो अप टू 60 लाख जो रिपेयर है वो खुद कर सकते हैं, खुद डिपार्टमेंट कर सकता है, और उसका कोई और सबऑर्डिनेट ऑफिस है वो खुद कर सकता है। मगर जब ग्रेटर देन 60 लाख होगा तो जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट जैसे सीपीडब्ल्यूडी है, कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, कि स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, कि सपोज डिफेंस, रेलवे, स्पेस, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, उनका खुद का कंस्ट्रक्शन विंग है, ठीक है। तो वो वर्क उनको असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। और थर्ड वन जो था, जो ये एक्चुअली ये सबसेक्शन 2 था, ये जो था सबसेक्शन 2 था, और वही ग्रेटर देन 60 लाख ये जो रूल 133 का सबसेक्शन 3 बोल रहा है, ठीक है। 133 का और एक बार 133 का सबसेक्शन 3 बोल रहा है, बेसिकली पीएसयूज के ऊपर आ जाता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एजेंसी है, तो ग्रेटर देन 60 लाख होता है रिपेयर वर्क, तो उसको असाइन किया जा सकता है। मगर इसमें थोड़ा कंपटीशन होता है, जो लॉन्ग सम सर्विस चार्ज जिसका लिस्ट रहेगा उसको अवार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। तो मैं बार बार होता है, जो राइट साइड है वो बेसिकली अमेंडमेंट साइड है, ठीक है। इन एक्सेप्शनल केसेस, ये राइट साइड देख, एक्सेप्शनल केसेस, सपोज ये जो रूल 144 है, जो पर्टिकुलरली एक सिंगल एजेंसी को दे दिया जाता है यहां पर वर्क नॉमिनेशन बेसिस में। 100 जो जीएफआर रूल 194 जो बोलता है ना, एक नॉमिनेशन बेसिस में द पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन एजेंसी को दे दिया जाता है रिपेयर के लिए। तो इसमें क्या है, द वर्क अंडर दीज सर्कमस्टांसेस शैल आल्सो बी अवार्डेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग सम सर्विस चार्ज। मगर एक जस्टिफिकेशन दिया जाएगा, कि इसके जस्टिफिकेशन में क्या लिखा जाएगा, कि ये जो पर्टिकुलर वर्क है ये पर्टिकुलर एजेंसी को दे दिया गया इसी रीजन के वजह से, नॉमिनेशन के वजह से। यहां पर नहीं है, यहां पर नॉमिनेशन के वजह से उसको दे दिया गया, ठीक है। और एक लॉन्ग सम सर्विस चार्ज करके उसको अवार्ड दे दिया गया, ठीक है। तो ये जो सबसेक्शन है 133(1), 2, 3, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन वर्क्स के ऊपर है। तो आपको यहां पर याद रखना है, लेस देन 60 लाख द डिपार्टमेंट इटसेल्फ और इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स दे कैन एग्जीक्यूट वर्क,
ग्रेटर देन 60 लाख, ये सब रिपेयर वर्क में आपको बताया कोई ओरिजिनल वर्क है वो खुद नहीं कर सकता, डिपार्टमेंट खुद नहीं कर सकता, कि कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस है वो कोई ओरिजिनल वर्क न्यू कंस्ट्रक्शन वर्क खुद एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को वो चला जाएगा। मगर रिपेयर केस में, ये सब रिपेयर केस में, तो रिपेयर केस में क्या है, रिपेयर केस में लेस देन 60 लाख है तो खुद कर सकता है डिपार्टमेंट, कि उसका जो सबऑर्डिनेट ऑफिस है वो खुद एग्जीक्यूट कर सकता है लिमिटेड टेंडर में और ओपन टेंडर में। ग्रेटर देन 60 लाख वो कोई ऑर्गेनाइजेशन को चला जाएगा, ठीक है। और वही ग्रेटर जो थर्ड है ग्रेटर देन 60 लाख, ये पीएसयू का बात आ जाता है, पब्लिक सेक्टर, ये सब डायरेक्ट डिपार्टमेंट आ जाता है, ठीक है। जो 133(2) बोला है वो डायरेक्ट, जैसे बड़ा रोड ऑर्गेनाइजेशन है, कि कंस्ट्रक्शन विंग ऑफ रेलवे, की कंस्ट्रक्शन विंग ऑफ स्पेस, की कंस्ट्रक्शन विंग ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, की कंस्ट्रक्शन विंग ऑफ पोस्टल, ये सब डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स का है। मगर पीएसयू जो 100 वही सेम थिंग है, रिपेयर ग्रेटर देन 60 लाख होता है तो वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जाता है, तो वहां पर कंपटीशन होता है, लॉमसम जो चार्जेस, सर्विस चार्जेस है, जिसका लिस्ट रहेगा उसको अवार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। और कभी कभी नॉमिनेशन भी होता है, कभी कभी ये पर्टिकुलर एजेंसी को वर्क दे दिया जाता है नॉमिनेशन में, जो जीएफआर रूल 194 देखिए, पर्टिकुलर एजेंसी को दे दिया जाएगा, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को वर्क दे दिया जाएगा प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ, वहां पर कोई लिमिटेड टेंडर ओपन टेंडर नहीं होगा, ओके, जस्टिफिकेशन के साथ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिपेयर करने के लिए वर्क दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलेंगे अमेंडमेंट इन जीएफआर प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स। तो जो जीएफआर रूल आप देखिए 139 में अमेंडमेंट आ गया, इसमें क्या है कि हम देखेंगे जो रिपेयर वर्क होगा वो जो लिमिटेड टेंडर ओपन टेंडर का जो अमाउंट है उसमें क्लियरली दिया है। तो जीएफआर रूल 139 में प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स, ठीक है। तो थोड़ा मैं प्रोसीजर्स के ऊपर बता देता हूं। प्रोसीजर्स क्या होता है कि फर्स्ट वन, क्या हम लिमिटेड टेंडर इनवाइट करेंगे ना हम ओपन टेंडर इनवाइट करेंगे, दो है, एक है लिमिटेड टेंडर और एक है ओपन टेंडर, दो चीज हमको देखना है, एक लिमिटेड टेंडर है और एक ओपन टेंडर है, ठीक है। एस्टिमेशन होगा कि जो वर्क होगा उसका एस्टिमेशन होगा कि कितना, फर्स्ट एस्टिमेशन भेजा जाएगा, फिर उसका डिजाइन, वर्क का डिजाइन कैसे होगा, और एक्सपेंडिचर एक्चुअली अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और वो एस्टिमेशन डिजाइन ये सब देने के बाद उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने के बाद एक्सपेंडिचर अप्रूवल होगा, ठीक है। और देन वो लिमिटेड टेंडर ओपन टेंडर में बीड इनवाइट किया जाएगा, फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को चला जाएगा वर्क, ठीक है। तो यहां पर भाई एग्जीक्यूशन वर्क में यही सब आता है। आप कोई भी रिपेयर वर्क है, आप फर्स्ट एस्टिमेशन मांग लीजिए, चाहे आप डिसाइड कीजिए उसका अमाउंट के हिसाब से, लिमिटेड टेंडर है ओपन टेंडर अभी डिस्कस करेंगे, तो उसके हिसाब एस्टिमेशन मांग लीजिए, और उसका डिजाइन वर्क का क्या होगा, एस्टिमेशन विद डिजाइन, उसको अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल किया जाएगा, उसके बाद एक्सपेंडिचर अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फिर अवार्ड दे दिया जाएगा, जो वर्क अवार्ड है दे दिया जाएगा। ये सब आ जाता है जो प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स, ठीक है। तो भाई राइट साइड देखिए सब अमेंडमेंट है। द ब्रॉड प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स अंडर इट्स ओन अरेंजमेंट शैल बी एज अंडर। तो इसमें क्या है, हम जानते हैं कि अप टू, अभी जो अमेंडमेंट के बाद अप टू 60 लाख, पहले क्या था ना, अप टू 30 लाख था, अप टू 30 लाख था, ये अभी अमेंडमेंट होकर अप टू 60 लाख हो गया। तो मैं बार बार बताया जो रिपेयर वर्क है अप टू 60 लाख, द डिपार्टमेंट इटसेल्फ कैन एग्जीक्यूट द वर्क, डिपार्टमेंट खुद कर सकता है अप टू 60 लाख रिपेयर वर्क, कि कोई डिपार्टमेंट का सबऑर्डिनेट ऑफिस है वो खुद कर सकता है वर्क को, मगर खुद करेगा मींस वो लिमिटेड टेंडर और ओपन टेंडर में इनवाइट करेगा, तो उसके लिए एस्टिमेशन अमाउंट है। ये आपको याद रखना है, जो प्रोसीजर फॉर जो रूल 139 है, जब द डिपार्टमेंट इटसेल्फ एग्जीक्यूट द वर्क, और उसके लिए हम अमाउंट जानते हैं अप टू 60 लाख, यदि रिपेयर वर्क एस्टिमेशन होता है अप टू 60 लाख, वो डिपार्टमेंट इटसेल्फ और सबऑर्डिनेट ऑफिस इटसेल्फ एक्चुअली एग्जीक्यूट द वर्क। मगर जब एग्जीक्यूट करेगा वो ओपन टेंडर और लिमिटेड टेंडर, तो अमाउंट है, सपोज ओपन टेंडर्स बोल रहा है 10 लाख टू रुपीज, यहां पर 10 लाख टू रुपीज 60 लाख ओपन टेंडर, ओपन टेंडर में
कास्टिंग ₹10 लाख to ₹60 लाख, ठीक है। और लिमिटेड टेंडर में लेस देन 10 लाख से तो लिमिटेड टेंडर इनवाइट किया जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो है ओपन टेंडर में, ये लिमिटेड टेंडर है, ओपन टेंडर में 10 लाख अप टू 60 लाख, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहले क्या था ना, जो ओपन टेंडर था 5 लाख to 30 लाख ओपन टेंडर, और लेस देन 5 लाख था लिमिटेड टेंडर पहले। मगर अभी अमेंडमेंट होकर हो गया 10 लाख to 60 लाख है यदि एस्टिमेटेड अमाउंट है रिपेयर का, वो ओपन टेंडर, और लेस देन 10 लाख है लिमिटेड टेंडर। पहले लेस देन 5 लाख था, अभी लिमिटेड टेंडर लेस देन 10 लाख है। तो लिमिटेड टेंडर क्या होता है, कुछ हमारे पास रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे पास कुछ रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशंस है। तो फर्स्ट लिमिटेड टेंडर्स में हम क्या करेंगे, उनको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, उनको बोलेंगे कि आप एस्टिमेशन दे दो, आप डिजाइन दे दो, और फिर हम हमारा वेबसाइट में अपलोड करेंगे, डिपार्टमेंट खुद का वेबसाइट में अपलोड करेगा, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में अपलोड करेगा। मगर लिमिटेड ओपन में क्या है, ओपनली सबको इनवाइट किया जाएगा। जैसे द डिपार्टमेंट इटसेल्फ, फर्स्ट ओपन टेंडर के ऊपर बताता हूं। ओपन टेंडर, सपोज हमारा जो रिपेयर का एस्टिमेशन अमाउंट हो गया 10 लाख अप टू 60 लाख, तो 10 लाख अप टू 60 लाख मींस ओपन टेंडर में जाएगा। तो ओपन टेंडर में क्या होता है, फर्स्ट पब्लिश होगा, द डिपार्टमेंट इटसेल्फ पब्लिश इट ऑन इट्स वेबसाइट और गोज टू द सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल की पब्लिश इट ऑन जेम, ठीक है। तो सबको वहां पर इनवाइट किया जाएगा, राइट। सब एस्टिमेशन देंगे, सब उसका डिजाइन देंगे, सब उसका लॉमसम सर्विस चार्ज देंगे कि ये वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो वो तो एस्टिमेशन में आ जाएगा ना, ठीक है। मगर लिमिटेड टेंडर में क्या होता है, लेस देन 10 लाख लिमिटेड टेंडर, जो खुद का डिपार्टमेंट और जो उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस है, उनके पास कुछ कंस्ट्रक्शन एजेंसीज है, ठीक है, तो उनको इनवाइट कर दिया जाएगा। और बाकी जब पब्लिश होगा खुद का वेबसाइट में और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में, उस समय कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उनका एस्टिमेशन एंड डिजाइन देंगे, ठीक है। तो फिर उसको एनालाइज किया जाएगा, जिसका लीस्ट लॉमसम सर्विस चार्ज होगा उसको ही अवार्ड दे दिया जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है ये। लिमिटेड टेंडर में क्या है, लिमिटेड टेंडर में कुछ रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशंस डिपार्टमेंट के पास है, उनको डायरेक्टली इनवाइट कर दिया जाएगा। बाकी तो वो वेबसाइट में पब्लिश होगा, CPPP में पब्लिश होगा, जेम में पब्लिश होगा, और कुछ आ सकते हैं। मगर ओपन टेंडर में ऐसे कहा को डायरेक्टली इनवाइट नहीं किया जाएगा, डिपार्टमेंट खुद का वेबसाइट में पब्लिश कर देगा, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में पब्लिश कर देगा, और जेम में पब्लिश कर देगा, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज है वो अप्लाई करना चाहते हैं, वो अप्लाई करेंगे, उनका एस्टिमेशन और डिजाइन दे देंगे, ठीक है। फिर जो लीस्ट लॉमसम सर्विस चार्ज अल्टीमेटली जो चार्ज करेगा, जिसका लीस्ट होगा सर्विस चार्ज, तो उसको अवार्ड दे दिया जाएगा। तो आपको यहां पर याद रखना है कि अब ये जो है, अभी जो अमेंडमेंट होने के बाद यदि डिपार्टमेंट खुद अप टू 60 लाख तो डिपार्टमेंट के हाथ में है, अप टू 60 लाख वो खुद रिपेयर वर्क को एग्जीक्यूट कर सकता है, खुद रिपेयर वर्क को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इस केस में क्या करेगा, यदि अभी अमेंडमेंट होगा, पहले वो अप टू 30 लाख था मगर अभी अप टू 60 लाख हो गया, तो उसमें वो एस्टिमेशन को देखेगा। लेस देन 10 लाख से तो वो लिमिटेड टेंडर इनवाइट करेगा, और 10 लाख अप टू 60 लाख से वो ओपन टेंडर इनवाइट करेगा, ठीक है। क्लियर। ये रूल 139 बोल रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, जो प्रोसीजर है, ठीक। अभी जेम के ऊपर हम देखेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, क्योंकि अभी मैंडेटरी है कि इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू प्रोक्योर द गुड्स फ्रॉम द जेम, टू प्रोक्योर द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द जेम। यदि जेम में नहीं है, यदि गुड जेम में नहीं है, तब हम विदाउट कोटेशन और लोकल परचेज कमिटी और अदर केस में जाएंगे, क्लियर। मगर अभी इट इज मैंडेटरी फॉर द प्रोक्योरिंग एंटिटी टू प्रोक्योर द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द जेम। If the respective goods and services are not available,
देन विदाउट कोटेशन, देन लोकल परचेज कमिटी, ये सबको जाएंगे हम। ठीक है, तो अभी क्या जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जो जीएफआर रूल्स 149 है, ठीक है, 149 है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये जो अमेंडमेंट अगेन बताता हूं, 10 जुलाई 2024 में अमेंडमेंट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो चलेंगे क्या अमेंडमेंट हुआ देखेंगे। ठीक है, तो अभी आ गया रूल 149 गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। आप राइट साइड अमेंडमेंट रूल देखिए, सब राइट साइड अमेंडमेंट है। तो उसके लिए एक जेम एसपी भी है। जेम एक लिमिटेड कंपनी है, जेम एसपीवी, एक ऑटोनोमस स्टेटस सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है जेम एसपीवी को। तो जेम एसपीवी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द जेम। ठीक है, तो वो एडिक्वेट पब्लिसिटी इंक्लूडिंग पीरियोडिक एडवर्टाइजमेंट एवरीथिंग वो जेम एसपीवी करता है। ओके, जेम का पब्लिसिटी जो है, ओके, उसका जो एडवर्टाइजमेंट ऑफ द आइटम्स, ठीक है, फॉर प्रोक्योर्ड थ्रू जेम, ये सब पब्लिश कौन, उसका पब्लिसिटी कौन करता है, जेम एसपीवी। ये इसको याद रखना है। ये एक कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ऑटोनोमस स्टेटस दिया है। ओके, तो जो सप्लायर्स का क्रीडेंशियल है, जो सप्लायर्स का ऑथेंटिकेशन है, ये जेम एसपीवी चेक करेगा। जैसे रिलायबिलिटी, ऑथेंटिकेशन की, पास्ट सर्विस, ठीक है, कि उनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कि उनका डिलीवरी स्टेटस, ये सब जेम एसपीवी उसको चेक करेगा क्रीडेंशियल्स को, और जेम एसपीवी सप्लायर्स को रजिस्टर भी करेगा। ओके, जेम में जो सप्लायर्स है उनको जेम एसपीवी रजिस्टर करेगा। तो उनका क्या क्या चेक करेगा, उनका क्रीडेंशियल्स जो है, उनका पास्ट सेल सर्विस, उनका मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, उनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उनका डिलीवरी स्टेटस, ये सबको चेक करेगा और उनको रजिस्टर करेगा जेम पोर्टल में। ठीक है, तो इसमें याद रखना है, जो जेम जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इसको ऑपरेट कौन करता है, जेम एसपीवी एक लिमिटेड कंपनी है जिसको ऑटोनोमस स्टेटस सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, चलो, द प्रोक्योरमेंट ऑफ, यहां पर मैं सभी बता दिया, द क्रीडेंशियल्स ऑफ द सप्लायर, ये सब जेम एसपीवी देखता है, ये सब बता दिया। ठीक है, अभी थोड़ा रेट्स को चलेंगे। यहां पर आप देखिए, पहले क्या था, अप टू ₹25,000। सपोज आप कोई भी गुड्स की कोई भी सर्विसेज जेम से अवेल करना चाहते हो, और उसका जो एस्टिमेशन है अप टू ₹25,000 है। अप टू ₹25,000 था, तो कोई भी सप्लायर से उसको ले सकते हो, मगर वो अभी बढ़कर अप टू ₹50,000 हो गया। तो आपको याद रखना है, यदि आप गुड्स एंड सर्विसेज जेम से अवेल करना चाहते हो और उसका जो कॉस्ट है अप टू ₹50,000, तो इट कैन प्रोक्योर इट फ्रॉम एनी अवेलेबल सप्लायर ऑन द जेम। ठीक है, एनी अवेलेबल सप्लायर से आप ले सकते हो। ये अभी यही करेक्ट है, यही अभी अमेंडमेंट होकर 50,000 हो गया। समझ में आ गया? तो अप टू कॉस्ट ₹50,000, ओके, इट कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम एनी सप्लायर अवेलेबल ऑन जेम। ठीक है, मगर ये हम क्या चेक करेंगे, आपको याद रखना है, 3 चीज देखना है। जब जेम से आप गुड खरीदते हो, कि आप सर्विस को अवेल करना चाहते हो, तो क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी। फर्स्ट गुड का क्वालिटी देखिए, स्पेसिफिकेशन देखिए। स्पेसिफिकेशन क्या है, फीचर्स। ठीक है, आप एक मोबाइल खरीदना चाहते हो, आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हो, तो आप उसका फीचर्स देखिए। जो लेटेस्ट फीचर है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला है, उसको आप खरीदते हो, तो वही स्पेसिफिकेशन से जो न्यू फीचर्स है आपको पता चल जाएगा। और नेक्स्ट है डिलीवरी पीरियड, वो विद इन हाउ मेनी डेज द पर्टिकुलर सप्लायर डिलीवरी द प्रोडक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीज, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी। ठीक है, तो अप टू कॉस्ट ₹50,000 it can be procured through any supplier available on the JAM after checking quality, specification and delivery period। ठीक है, मगर ये लागू नहीं होगा ऑटोमोबाइल्स के लिए, लागू नहीं होगा। कोई भी ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट है, ये जो अमाउंट है वो लागू नहीं होगा, उसके लिए कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। ऑटोमोबाइल्स के लिए कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। ठीक है, चलो, पहले ये क्या था, पहले ये था, तो अभी क्या हो गया, वो बढ़कर अप टू ₹50,000 एनी सप्लायर अवेलेबल ऑन जेम, हम उससे प्रोक्योर कर सकते हैं। चलो, नेक्स्ट वन, ये एक अमाउंट आ गया कि अमेंडमेंट होने के बाद अबव ₹50,000 एंड अप टू ₹10 लाख। ये है क्या है ना, 50,000 अप टू 10 लाख, अप टू 10 लाख
हम क्या करेंगे, एटलीस्ट थ्री मैन्युफैक्चरर्स को जाएंगे, ठीक है, थ्रू द जेएम सेलर्स हैविंग लोएस्ट प्राइस अमंग्स द अवेलेबल सेलर्स ऑफ एटलीस्ट थ्री, ये बहुत ही एटलीस्ट थ्री डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, माने मिनिमम थ्री मैन्युफैक्चरर्स को डिटेक्ट करना है। यदि कॉस्ट आ जाता है इक्वल टू 50,000 अप टू 10 लाख, तब आप मिनिमम थ्री सेलर्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका प्राइस कम है, मिनिमम थ्री सेलर्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका प्राइस लिस्ट है, जिनका प्राइस लिस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट थ्री, ठीक है। और भाई चेक करना है क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी स्टेटस को चेक करना है, और ये एटलीस्ट थ्री, उससे ज्यादा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मिनिमम थ्री सप्लायर्स जिनका प्राइस लिस्ट है, ठीक है, उनको डिटेक्ट करना है, फिर आप उनको एनालाइज करना है, जो बेसिकली क्वालिटी है, स्पेसिफिकेशन है, डिलीवरी स्टेटस, उसको चेक करना है, ठीक है, क्लियर। और भी ये भी दिया है कि आप रिवर्स ऑक्शन को भी जा सकते हो इस केस में, ठीक है। द टूल्स फॉर ऑनलाइन बिडिंग एंड ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन अवेलेबल ऑन जेम कैन बी यूज्ड बाय द बायर इवन फॉर प्रोक्योरमेंट लेस देन ₹10 लाख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस देन 10 लाख है, आप ऑनलाइन बिडिंग में जा सकते हो और रिवर्स ऑक्शन में जा सकते हो, ठीक है, यहां पर दे दिया, ये नहीं है कि ओनली आप इट मींस एटलीस्ट थ्री मैन्युफैक्चरर्स को, एटलीस्ट थ्री सेलर्स को डिटेक्ट करना है जिनका प्राइस लिस्ट है और उनका क्वालिटी, डिलीवरी स्टेटस और स्पेसिफिकेशन को चेक करके फिर फाइनली अवार्ड दे दिया जाता है, ठीक है। मगर ये भी है, लेस देन 10 लाख हम रिवर्स ऑक्शन को जा सकते हैं और ऑनलाइन बिडिंग को जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये चीज को आप देख लीजिए। तो इट मींस लेस देन 10 लाख भी रिवर्स ऑक्शन में जा सकते हैं और ऑनलाइन बिडिंग को जा सकते हैं। थोड़ा रिवर्स ऑक्शन के ऊपर बताता हूं, जो RA रिवर्स ऑक्शन क्या है, मेनी सेलर्स वन बायर, ओके, मेनी सेलर्स, ये सब सेलर्स है, ए सपोज ये सेलर्स है, ये सेलर्स है और एक बायर है, एक बायर, तो इसमें आप जानते हो, तो ये तो ऑक्शन क्या होता है, ऑक्शन में क्या है, वन बायर है, ऑक्शन क्या है, वन बायर है, जो ऑक्शन होता है बेसिकली, एक चीज आपको ध्यान देना है, जो ऑक्शन है रिवर्स ऑक्शन के ऊपर बता देता हूं, यहां पर जो रिवर्स ऑक्शन है लार्ज सेलर से, ए वन बायर है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट है वो खरीदना चाहते हैं कि कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस खरीदना चाहते हैं, एक बायर है मगर मोर सेलर से, तो उनके बीच में तो इसमें क्या है, जिसका प्राइस कम होगा, ठीक है, यहां पर कंपटीशन होता है, कोई बोलता है कि मैं उसको सपोज 7 लाख में दे दूंगा, कोई बोलता है मैं 6.5 लाख, सपोज एक बोला 7 लाख, एक बोला 6.5 लाख, एक बोला 6 लाख, तो ऐसे कंपटीशन होता है, बिकॉज मोर नंबर ऑफ सेलर्स है, वन बायर है, तो 6 लाख को अवार्ड दे दिया जाएगा, यही है रिवर्स ऑक्शन, मोर नंबर ऑफ सेलर्स वन बायर। मगर ऑक्शन क्या है, आप एक बिल्डिंग को ऑक्शन करना चाहते हो, ठीक है, तो बहुत लोग होते हैं, वो बोलते हैं हम बिल्डिंग को खरीदेंगे, वहां पर प्राइस बढ़ता है, नॉर्मल ऑक्शन केस में प्राइस बढ़ता है नहीं, क्योंकि वहां पर क्या है कि वन सेलर है लार्ज बायर से, नॉर्मल ऑक्शन में वन सेलर है लार्ज बायर से, तो प्राइस बढ़ता जाता है, मगर रिवर्स ऑक्शन उल्टा है, सपोज पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस वो जेम से खरीदना चाहता है और उसका जो अमाउंट में अभी बताया कि मोर देन 50,000 अप टू 10 लाख, मोर देन 50,000 अप टू और लेस देन 10 लाख, लेस देन सपोज यहां पर रिवर्स ऑक्शन लेस देन 10 लाख है, फिर भी आप रिवर्स ऑक्शन में जा सकते हो। तो इसमें क्या है, मोर सेलर से, ये सब सेलर से, ये सब सेलर से, एस में लिख दिया, ये सब सेलर से वन बायर है, तो प्राइस कम होता जाएगा, जैसे एक बोला 7 लाख, एक 6.5 लाख, एक 6 लाख, तो 6 लाख को अवार्ड हो जाएगा। तो ये ऑक्शन का उल्टा है, ऑक्शन में प्राइस बढ़ता है क्योंकि बहुत बायर्स होते हैं, वन सेलर होता है नॉर्मल ऑक्शन में, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है लेस देन 10 लाख भी हम रिवर्स ऑक्शन और ऑनलाइन बिडिंग में प्रोक्योर कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन जो आएगा अबव ₹10 लाख, अबव ₹10 लाख मींस आपको ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन को जाना है, रिवर्स ऑक्शन जिसको RA बोलते हैं, हमको जाना है, कंपल्सरी जाना है, मैंडेटरी जाना है, यहां पर एक मैंडेटरीली जाना है,
तो ग्रेटर देन, ये सब चेंज हो गया, पहले जो था ये अभी चेंज हो गया, ठीक है। तो पहले क्या था, अप टू 25,000 फ्रॉम एनी सप्लायर अवेलेबल ऑन जेम, ठीक है। और मोर देन 25,000 टू 5 लाख, एटलीस्ट 3 सप्लायर्स, एटलीस्ट 3 सप्लायर्स। और ये भी होता था लेस देन 5 लाख भी रिवर्स ऑक्शन और ऑनलाइन बिडिंग में जा सकते हो। और ग्रेटर देन 5 लाख था, ओके, कोई कॉस्ट है, कोई गुड्स आप खरीदना चाहते हो जिसका कॉस्ट मोर देन 5 लाख है तो रिवर्स ऑक्शन में। मगर अभी उल्टा हो गया, अप टू 50,000 एनी सप्लायर अवेलेबल ऑन जेम। और नेक्स्ट वन, ग्रेटर देन 50,000, ओके, लेस देन ग्रेटर देन 50,000 अप टू 10 लाख, एटलीस्ट 3 सप्लायर्स, एटलीस्ट 3 सप्लायर्स, ठीक है। उसका स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी स्टाटस, क्वालिटी को चेक करना है और अवार्ड देना है। और नेक्स्ट वन, एटलीस्ट 3 सप्लायर्स लो, जो जिसका प्राइस लिस्ट है उसको अवार्ड दे दिया जाएगा। और लेस देन 10 लाख भी रिवर्स ऑक्शन को जा सकते हो, मगर ग्रेटर देन 10 लाख मींस कंपल्सरी रिवर्स ऑक्शन। तो रिवर्स ऑक्शन, मेनी सेलर, रिवर्स ऑक्शन में क्या है, मेनी सेलर्स, इसको याद रखना है, मेनी सेलर्स मगर वन बायर। तो यहां पर क्या है ना, ऑनलाइन में प्राइस कम होता जा रहा है, में डाउनवर्ड प्राइस कम होता जाता है। ऑक्शन में, नॉर्मल ऑक्शन में प्राइस बढ़ता है, नॉर्मल ऑप्शन में, जो नॉर्मल ऑक्शन होता है मेनी बायर्स होते हैं, वन सेलर होते हैं। मगर यहां पर उल्टा, एक ऑर्गेनाइजेशन खरीदना चाहते हैं कि मगर जेम में मेनी सप्लायर्स है, तो उनके बीच में कंपटीशन होता है, तो प्राइस कम होता जाता है। जो प्राइस लिस्ट होगा उसको अवार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। अभी क्लियर हो गए। तो यहां पर थोड़ा याद रखिए कि अप टू, फर्स्ट वन क्या था, अप टू 50,000, ठीक है। इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, अप टू 50,000 एनी सप्लायर अवेलेबल ऑन जेम। देन नेक्स्ट वन, ग्रेटर देन 50,000 and equal to 10 lakh, at least 3 suppliers, और जिसका प्राइस कम होगा, और हम क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी स्टेटस चेक करेंगे, और जिसका L1 होगा, जिसका प्राइस लेस होगा, उसको अवार्ड दे दिया जाएगा। और ग्रेटर देन 10 लाख रिवर्स ऑक्शन ऑनलाइन बिडिंग होता है, मोर नंबर ऑफ सप्लायर्स वन बायर, तो ऑटोमेटिकली प्राइस कम होता जाएगा कंपटीशन में, ठीक है। और जो लिस्ट प्राइस होगा उसको अवार्ड दे दिया जाएगा। ये अभी अमेंडमेंट के बाद आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, अमेंडमेंट इन जनरल फाइनेंशियल रूल विदाउट कोटेशन। जो जीएफआर रूल है 154, आपको याद रखना है, विदाउट कोटेशन रूल 154, ओके। फिर अमेंडमेंट डेट भी यहां पर लिखा है 10 जुलाई 2024, ठीक है। तो विदाउट कोटेशन में जब जाएंगे, फर्स्ट आपको याद रखना है, यदि अभी क्या है, इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट प्रोक्यूरिंग एंटिटी टू परचेज द कमोडिटी फ्रॉम द जेम। इफ द कमोडिटी इज नॉट अवेलेबल ऑन द जेम, देन यू गो फॉर कोटेशन। परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन। विदाउट कोटेशन अभी हो गया अप टू 50,000, पहले था अप टू 25,000 था, विदाउट कोई कोटेशन का जरूरत नहीं है। मगर अभी हो गया कि अप टू इक्वल, यहां पर याद रखिए, अप टू ₹50,000 विदाउट कोटेशन। मगर इसको याद रखना है, फर्स्ट हम जेम को जाएंगे, जेम में नहीं है और हम देखेंगे कॉस्ट अप टू 50,000 है, तब हम विदाउट कोटेशन में जाएंगे, ठीक है। तो परचेज ऑफ गुड्स अप टू वैल्यू ऑफ ₹50,000 ओनली ऑन ईच ओकेजन मे बी मेड विदाउट इनवाइटिंग कोटेशन। मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जेम में जाइए। सपोज वो गुड जेम में नहीं है, तब हम जाएंगे कोटेशन में। कोटेशन क्या है, अप टू 50,000। कोई भी कमोडिटी आप परचेज करना चाहते हो, वो जेम में अवेलेबल नहीं है, तब हम विदाउट कोटेशन जाएंगे, क्योंकि अप टू 50,000 विदाउट कोटेशन में जाएंगे। यहां पर एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। पहले ये अप टू ₹25,000 था विदाउट कोटेशन, मगर अभी इंक्रीज होकर अप टू ₹50,000 हो गया, ठीक है। राइट साइड ये अमेंडमेंट है, ठीक है। इसके लिए एक सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ेगा। आई एम पर्सनली सर्टिस्फाइड दैट, ये देखिए, आई एम पर्सनली सर्टिस्फाइड दैट दीज गुड्स परचेज्ड आर ऑफ द रिक्विसाइड क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन एंड हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम ए रिलायबल सप्लायर एट ए रीजनेबल प्राइस। ऐसे एक सर्टिफिकेट आपको इश्यू करना पड़ेगा विदाउट कोटेशन में आप खरीदना चाहते हो। मगर बहुत इंपॉर्टेंट है,
यदि कमोडिटी अवेलेबल नहीं है जेम में और जो उसका कॉस्ट है अप टू नॉट इक्वल टू अप टू 50,000 है, तब हम विदाउट कोटेशन में जाएंगे और ये सर्टिफिकेट में मेंशन होगा कि जो जो कमोडिटी को प्रोक्योर किया गया, खरीदा गया, प्रॉपर स्पेसिफिकेशन है, उसका क्वालिटी है और एक रिलायबल सप्लायर से उसको खरीदा गया। ठीक है, नेक्स्ट वन अमेंडमेंट आ गया लोकल परचेज कमिटी, जो एलपीसी होता है, जीएफआर रूल्स 155 आप देखिए। ठीक है, उसमें अमेंडमेंट आ गया तो उसको जाएंगे। ठीक है, जनरल फाइनेंशियल रूल 155, इट इज रिलेटेड टू द एलपीसी, लोकल परचेज कमिटी। यहां पर आप देख लीजिए वही है, यदि जेम में द कमोडिटी इज नॉट अवेलेबल इन जेम, देन यू गो फॉर एक्चुअली एलपीसी कब ना ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख। पहले क्या था, पहले था ये था ग्रेटर देन 25,000, अप टू था 2.5 लाख, अप टू 2.5 लाख पहले था, यह भी नहीं है, अमेंडमेंट हो गया ग्रेटर देन 50,000 अप टू 5 लाख। यदि जो कमोडिटी है उसका कॉस्ट है, तब हम एलपीसी को जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट हम जेम में देखेंगे, इनकेस देखो, इनकेस ए सर्टेन आइटम इज नॉट अवेलेबल ऑन द जेम पोर्टल, देन परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ये है। फर्स्ट हम जेम में देखेंगे, यदि जेम में नहीं है और उसका कॉस्ट ग्रेटर देन 50,000 है अप टू 5 लाख, तब हम एलपीसी, लोकल परचेज कमिटी है। लोकल परचेज कमिटी में 3 मेंबर्स होते हैं, वही दे दिया देखिए, ग्रेटर देन अभी जो ग्रेटर देन 50,000 एंड अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख। तो एलपीसी एक्चुअली 3 मेंबर्स होते हैं। ओके, उनको मार्केट सर्वे के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, वो जाकर मार्केट सर्वे करेंगे और इट मींस कोटेशंस कलेक्ट करेंगे, कोटेशंस कलेक्ट करेंगे और जो कोटेशंस कलेक्ट करने के बाद उसको चेक किया जाएगा, स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, डिलीवरी स्टाटस, रिलायबल ऑफ द सप्लायर, उसको चेक किया जाएगा और जो अल्टीमेटली जिसका लिस्ट प्राइस होगा उससे ही प्रोक्योर किया जाएगा, मगर मार्केट सर्वे होगा। ठीक है, एलपीसी मार्केट सर्वे करता है। ठीक है, मार्केट सर्विस में वो कोटेशंस कलेक्ट करेगा, कोटेशंस डिफरेंट सेलर से कोटेशन कलेक्ट करेगा और हम एनालाइज करेंगे, स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, डिलीवरी स्टेटस, रिलायबल ऑफ द सप्लायर, सब एनालाइज करेंगे और जिसका लिस्ट प्राइस होगा उससे ही खरीदा जाएगा। ठीक है, और एलपीसी में कितना मेंबर होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं और मार्केट सर्वे होता है। ठीक है, तो उसमें एक सर्टिफिकेट इशू होगा, वही दे दिया, द कमिटी विल सर्वे द, यहां पर दे दो, कमिटी विल सर्वे द मार्केट टू ascertain द रीजनेबलनेस ऑफ रेट, क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशंस एंड आइडेंटिटी द अप्रोप्रिएट सप्लायर, ये सब बोल चुका हूं। तो बिफोर रिकमेंडिंग प्लेसमेंट ऑफ द परचेज ऑर्डर, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी विल जॉइंटली रिकॉर्ड ए सर्टिफिकेट एज ऑनर। एक सर्टिफिकेट वो क्या करेंगे, सर्टिफिकेट एक्चुअली वो बिफोर रिकमेंडिंग, तो कोटेशंस कलेक्ट करने के बाद वो सब एनालाइज होगा, फिर हम डिसाइड करेंगे हाँ इसी सेलर से हम उसको खरीदेंगे। उसके पहले एक जॉइंट सर्टिफिकेट, एक्चुअली एक सर्टिफिकेट रिकॉर्डेड होगा जॉइंटली। तो सर्टिफिकेट ऐसे होता है कि सर्टिफाइड दैट वी मेंबर्स ऑफ द परचेज कमिटी आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली satisfied that the goods recommended for purchase are of the requisite specification and quality, priced at the prevailing market rate, and the supplier recommended it is reliable and competent to supply the goods in question, and it is not deviated by the Department of Expenditure or Ministry or Department concerned. ऐसे एक सर्टिफिकेट इश्यू होगा बिफोर परचेजिंग द कमोडिटी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वन अमेंडमेंट आ गया, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, एटीई, जीएफआर रूल आप देखिए 161, जो जीएफआर रूल 161 है वो एटीई के ऊपर है, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के ऊपर है। देखेंगे इसमें क्या चेंज हुआ। एडवर्टाइज टेंडर में तो सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस इनकॉर्पोरेटेड 154 था विदाउट कोटेशन, 155 था लोकल परचेज कमिटी कोटेशंस, 162 लिमिटेड टेंडर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, और 166 एक सिंगल टेंडर इंक्वायरी है, 166 सिंगल टेंडर इंक्वायरी है। तो ये सभी इनवाइटेशन। तो एटीए में क्या बोलता है हम देखेंगे, एटीए में क्या चेंज हुआ। यदि आप देखिए
इक्वल टू 50 lakhs and greater than 50 lakhs। ठीक है, पहले क्या था, इक्वल टू 25 lakhs, ग्रेटर देन 25 lakhs एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी को जाएगा। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी क्या होगा ना, जो बिडिंग इनवाइट किया जाएगा वो जो सबऑर्डिनेट ऑफिस है कि डिपार्टमेंट है वो भी बिड इनवाइट करेंगे, तो उनका खुद का वेबसाइट में पब्लिश होगा, खुद का वेबसाइट में होगा, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में होगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल में होगा, तो ओपनली एडवर्टाइजमेंट होगा। ठीक है, ओपनली एडवर्टाइजमेंट होगा और वेबसाइट भी दे दिया जाएगा। कब एक्चुअली जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स का जो सबमिशन लास्ट डेट है, कब बिडिंग जो ओपनिंग डेट है वो डिटेल्स रहेगा। ठीक है, और जो बिडर्स है वो फ्रीली डाउनलोड करेंगे जो पर्टिकुलर वेबसाइट दिया होगा। ठीक है, और ई प्रोक्योरमेंट का बात है वो फिर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो फिर ऐसे अल्टीमेटली बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया जाएगा और बिड अवार्ड किया जाएगा। ठीक है, मगर यहां पर एडवर्टाइज्ड में हम कब जाएंगे, इक्वल टू 50 lakhs एंड ग्रेटर देन 50 lakh। ठीक है, पब्लिश कहां पर होगा, CPPP में होगा, उसका वेबसाइट है www.eprocure.gov.in, इसमें पब्लिश होगा, जेम में पब्लिश होगा और ऑर्गेनाइजेशन का खुद का वेबसाइट में पब्लिश होगा। ठीक है, यदि जो अमाउंट है, यदि हम देखते हैं जो गुड्स हम प्रोक्योर करेंगे उसका जो कॉस्ट है 50 लाख है एंड ग्रेटर देन 50 लाख है, तब हम एडवर्टाइज जो ओपन टेंडर होता है एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी को जाएंगे। ठीक है, मगर पहले क्या था, इक्वल टू 20 lakhs एंड ग्रेटर, जो कॉस्ट था गुड्स का इक्वल टू 20 lakh एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 25 lakhs एंड ग्रेटर देन 25 lakh, मगर अभी भी मॉडिफाई हो गया। अभी जो गुड्स का कॉस्ट होगा इक्वल टू 50 lakhs एंड ग्रेटर देन 50 lakhs, तब हम 80 में जाएंगे। ठीक है, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें थोड़ा अमेंडमेंट क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट वन, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में जो GFR 162 है वो LTE है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है। ठीक है, इसमें जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी था, इसमें पहले था कि अप टू 25 lakhs, यहां पर पहले जो था अप टू 25 lakhs था, अप टू 25 lakhs था लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। यदि जो कमोडिटीज हम प्रोक्योर करना चाहते हैं अप टू 25 lakhs हम लिमिटेड में जाते थे, मगर अभी वो अप टू 50 lakhs हम अभी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में जाएंगे। ठीक है, ये मॉडिफाई हो गया, अप टू 50 lakhs हम लिमिटेड टेंडर। लिमिटेड में क्या है, हमारे डिपार्टमेंट के पास कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, उसके पास कुछ रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, तो डायरेक्टली उनको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स भेज दिया जाएगा, चाहे ईमेल है, चाहे कोरियर है, चाहे स्पीड पोस्ट है, चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट है, उनको भेज दिया जाएगा जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है। बाकी वेबसाइट में अपलोड होगा, CPPP में अपलोड होगा, जेम में अपलोड होगा। मगर जो लिमिटेड में क्या है, जो डिपार्टमेंट के पास जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स भेज दिया जाएगा। ओके, सम सप्लायर्स एक्चुअली रजिस्टर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, सो टू देम एक्चुअली बिडिंग डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली सेंड टू देम थ्रू ईमेल, कोरियर, स्पीड पोस्ट की सपोज रजिस्टर्ड पोस्ट, उनको भेज दिया जाएगा। और बाकी खुद का वेबसाइट में पब्लिश होगा, CPPP में पब्लिश होगा और जेम में पब्लिश होगा, और कुछ आ सकते हैं। मगर इसमें क्या है, लिमिटेड में मोर देन 3 होना चाहिए। जो इसके बाद देखेंगे तो अभी समझ में आ गया, अमाउंट अप टू 50 lakhs हम लिमिटेड टेंडर में जाएंगे। और यहां पर जो मैं अभी बताया, जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, कॉपीज ऑफ द बिडिंग डॉक्यूमेंट should be sent directly by speed post, registered post, courier, email to farms which are born on the list of the registered suppliers। जो registered suppliers है according to the rule 150 GFR का, जो डिपार्टमेंट के पास जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, उनको डायरेक्टली बिडिंग डॉक्यूमेंट्स उनको भेज दिया जाएगा ये मोड में। और इसमें क्या है, ग्रेटर देन 3 सप्लायर्स होना चाहिए।
एक क्वेश्चन आता है, ग्रेटर देन 3 सप्लायर्स होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन। तो इसमें क्या है, जितना ज्यादा से ज्यादा हम रेस्पॉन्सिव बिड एक्चुअली कलेक्ट करेंगे, मगर जो मिनिमम है ग्रेटर देन 3 सप्लायर, यानी इट मींस एटलीस्ट 4 होना चाहिए, एटलीस्ट 4 सप्लायर्स होना चाहिए, 4 एस कर दिया, एटलीस्ट 4 सप्लायर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये यही है लिमिट। एडवर्टाइज में क्या है, कोई किसी को भेजा नहीं जाएगा बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, खुद का वेबसाइट में बिडिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, CPPP में अपलोड होगा और जेल में अपलोड होगा। तो कोई भी बिडर उसको वो डाउनलोड, जो वेबसाइट दिया जाएगा उसी वेबसाइट जाकर वो डाउनलोड करेंगे और फिर सबमिट करेंगे ऑनलाइन में। मगर लिमिटेड में क्या है, कुछ रजिस्टर्ड सप्लायर्स है जो GFR रूल 150 में दिया गया है, कुछ डिपार्टमेंट और कुछ पर्टिकुलर ऑफिस के पास कुछ रजिस्टर्ड सप्लायर होते हैं, तो डायरेक्टली उनको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स भेज दिया जाएगा। तो मोड क्या है, कैसे भेजा जाएगा, कुरियर में भेजा जा सकता है, मेल में भेजा जा सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट में जा सकता है, स्पीड पोस्ट में जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मगर हम जब देखेंगे तो एटलीस्ट 4 सप्लायर्स होना चाहिए, एटलीस्ट 4, नहीं तो मोर देन 3 सप्लायर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। तो फर्दर में बताया हम जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनको भेज देंगे डिफरेंट मोड में, और यहां पर हम ऑब्वियसली उसको हमारा CPPP में अपलोड करेंगे, और उसका खुद का वेबसाइट है, खुद का वेबसाइट मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट का वेबसाइट उसमें अपलोड करेंगे, और कुछ बिडर्स आ सकते हैं, ठीक है। और यहां पर है ये भी हो सकता है कभी कभी, क्या है इसको याद रखना है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ग्रेटर देन 50 लाख से हम 80 में नहीं जाएंगे, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में नहीं जाएंगे, 80 में नहीं जाएंगे। ग्रेटर देन 50 लाख से फिर भी हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में जाएंगे। कुछ सर्कमस्टांस ऐसा है, कुछ ऐसा अर्जेंसी है, कुछ ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट है जो हम 80 में नहीं जाएंगे, क्योंकि एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी कब होता है, जब 50 लाख एंड ग्रेटर देन 50 लाख। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी जब जो कमोडिटीज का कॉस्ट होगा 50 लाख एंड अबव। मगर कब कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस में, कुछ अर्जेंट केस में सपोज जो गुड्स हम प्रोक्योर करेंगे उसका वैल्यू ग्रेटर देन 50 लाख होगा, मगर फिर भी हम LT में जाएंगे। तो इसका कुछ कंडीशंस है। क्या ऐसा कंडीशन है कि हम लिमिटेड में जाएंगे ग्रेटर देन 50 लाख से, तो उसमें तो 80 में जाना चाहिए था, मगर हम LT में क्यों जाएंगे? ना कुछ ऑप्शंस है यहां पर दे दिया गया है। तो यहां पर प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे दिया जाएगा कि अर्जेंट है, डिमांड इज अर्जेंट, कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर, ये देखिए पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, डिमांड अर्जेंट है, इसके वजह से हम एडवर्टाइज में टाइम लगेगा, हम ओपन एडवर्टाइज करेंगे बहुत टाइम लगेगा, वो फिर बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फिर बिड ओपन होगा, बहुत है। तो मगर यहां पे क्या है, डिमांड अर्जेंट है, हम LT में चले जाएंगे, लिमिटेड में चले जाएंगे। और इसमें हमारा एडिशनल एक्सपेंडिचर को कभी कभी क्या है, हम एडिशनल एक्सपेंडिचर को माने बियर नहीं करना चाहते हैं। और थर्ड है, मेनली चीज है पब्लिक इंटरेस्ट। द मिनिस्टर डिपार्टमेंट शुड आल्सो पुट ऑन रिकॉर्ड द नेचर ऑफ द अर्जेंसी एंड रीजंस व्हाई द प्रोक्योरमेंट कुड नॉट बी एंटिसिपेटेड। इसमें जस्टिफिकेशन देना है, प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, नेचर ऑफ द अर्जेंसी होगा कि ये नेचर ऑफ द अर्जेंसी है जो उसको हम 80 में नहीं गए, LT में चले गए, ठीक है। और हम एक रीजन देंगे कि हम LT में जाएंगे तो हमारा एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ठीक है। तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना है। और क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट में सपोज हम एडवर्टाइज में नहीं जाएंगे क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से हम LT में जाएंगे, ठीक है। और क्या है, हमको सोर्स पता है, फ्रेश सोर्सेस, एक्चुअली जो द सोर्सेस ऑफ सप्लाई आर डेफिनेटली नोन, जिस सोर्स से हम उसको प्रोक्योर करेंगे वो पता है, अभी हम फ्रेश सोर्स को नहीं जाएंगे। तो ऐसा कुछ पॉइंट्स है जो ग्रेटर देन 50 लाख से फिर भी हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में जाते हैं, मगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना है। अर्जेंसी है तो नेचर ऑफ अर्जेंसी, हम एडिशनल एक्सपेंडिचर बियर नहीं करना चाहते, पब्लिक इंटरेस्ट में हम ग्रेटर देन 50 लाख है मगर पब्लिक इंटरेस्ट में हम LT में जाएंगे, और हमको सोर्स पता है तो हम न्यू सोर्स को नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ग्रेटर देन 50 लाख है, कुछ ऑप्शंस है, तो वो ऑप्शन के हिसाब से हम लिमिटेड में जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है
कि कब अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस actually the commodities actually cost is greater than 50 lakh, but instead of this actually the commodity is procured through LTE. ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट वन, इसमें एक अमेंडमेंट हो गया GFR 173 में, ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, फेयरनेस एंड एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रारीनेस इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ये GFR 173 में एक ये भी अमेंडमेंट आ गया, इसमें एक सब सेक्शन में अमेंडमेंट आ गया, देखेंगे इसमें। तो इसमें क्या अमेंडमेंट आ गया, वही चीज दे दिया, एग्जिस्टिंग रूल और राइट साइड में अमेंडमेंट रूल है, ठीक है। इसमें क्या देखिए, इसका एक सबसेक्शन है XXII, ये एक सबसेक्शन है जो उसको हम बोलते हैं 22nd। ओके, 22nd सबसेक्शन 22nd में क्या है, कभी कभी क्या है, इन केस देखिए राइट साइड अमेंडमेंट है, यही अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट नहीं है, यही साइड, इस साइड को देखिए। इन केस ए परचेज कमिटी इज कंस्टिट्यूटेड टू परचेज और रेकमेंड द प्रोक्योरमेंट, नो मेंबर ऑफ द परचेज कमिटी शुड बी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू एनी अदर मेंबर ऑफ सच कमिटी इन केस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट एक्सीड्स ₹50 लाख। यदि जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट ग्रेटर देन 50 लाख हो गया, तो अब हमारा लोकल जो परचेज कमिटी है उसका रिकमेंडेशन लिया जाता है। तो उसमें यदि एस्टिमेटेड वैल्यू ग्रेटर देन 50 लाख हो गया तो एक मेंबर कोई दूसरा मेंबर के पास नहीं जाएगा, तो देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अमंग द मेंबर्स, एनी मेंबर कैन नॉट गो टू अनदर मेंबर, ठीक है, क्योंकि परचेज कमिटी है, परचेज कमिटी के रिकमेंडेशन से प्रोक्योर किया जाएगा। मगर इसमें एक रूल है, ग्रेटर देन 50 लाख है एस्टिमेटेड वैल्यू, तब क्या होगा, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अमंग द कमिटी, परचेज कमिटी मेंबर्स, एनी मेंबर कैन नॉट गो टू द अनदर मेंबर, ओके, एंड डिस्कस अबाउट दिस थिंग, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ द परचेज कमिटी। समझ में आ गया? तो इसमें यही चेंज हुआ है, पहले क्या था, ग्रेटर देन 20, ये था ग्रेटर देन 25 लाख था पहले, मगर ये मॉडिफाई होके क्या हो गया, ग्रेटर देन 50 लाख हो गया, ठीक है। चलो कंसल्टिंग सर्विस में जाएंगे, GFR 183 अमेंडमेंट इन GFR, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट हुआ है रिलेटेड टू द ए पर्टिकुलरली जनरल फाइनेंशियल रूल 183 में, ये भी एक एस्टिमेटेड वैल्यू के ऊपर आता है। तो कंसल्टिंग सर्विस के ऊपर मैं बता देता हूं, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे टैक्स है, चाहे अकाउंटेंसी है, चाहे कम्युनिकेशन है, चाहे प्रोजेक्ट है, ये सब कंसल्टेंसी हम कंसल्ट करते हैं, कुछ एजेंसीज है उनके साथ कंसल्ट, टैक्स कंसल्टेंट है, अकाउंटेंसी कंसल्टेंट है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है, कम्युनिकेशन कंसल्टेंट है, पॉलिसी कंसल्टेंट है, तो उनके साथ हम कंसल्ट करते हैं, ये कंसल्टिंग सर्विसेज में आता है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या अमेंडमेंट हुआ देखेंगे कि ये था पहले अप टू ₹25 लाख था, अभी हो गया अप टू ₹50 लाख। इसमें क्या होगा, सपोज अप टू ₹50, अभी अमेंडमेंट होने के बाद अप टू 50 लाख से, तो हम क्या करेंगे, जो कंसल्टेंट से बेसिकली फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेस से हम डिफरेंट कंसल्टिंग एजेंसीज के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, फ्रॉम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फ्रॉम कंसल्टेंसी एसोसिएशन, कोई कंसल्टेंसी एसोसिएशन है उनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उससे डाटा कलेक्ट करते हैं, और कोई ऑर्गेनाइजेशंस में जो कंसल्टेंट है उनका डाटा, सपोज हमको टैक्स कंसल्टेंट चाहिए और हमारा उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट है अप टू 50 लाख, हमको टैक्स कंसल्टेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वो ये अप टू 50 लाख से, तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज से हम क्या करेंगे, कंसल्टेंट जो कंसल्टिंग एजेंसी है उनके बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम इट मींस एसोसिएशन ऑफ कंसल्टेंसी, फ्रॉम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इससे हम डाटा कलेक्ट करके उनको कंपाइल करेंगे, हाँ ये सब टैक्स कंसल्टेंट्स है, ठीक है। तो वही है, अप टू 50 लाख हम डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट में नहीं जाएंगे, बेसिकली फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज से हम
जो कंसल्टिंग एजेंसी है उनके बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें दिया है प्रिपरेशन, लॉन्ग लिस्ट करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ लॉन्ग लिस्ट करेंगे ऑफ पोटेंशियल कंसल्टेंट्स may be done on the basis of formal or informal inquiries from other ministries or departments or organizations involved in similar activities, chamber of commerce and industry, association of consultancy firms। ये हम एक लॉन्ग लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। यहां पर हम डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट में नहीं जाएंगे, ओनली फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेस में। और ये जो अमाउंट आपको याद रखना है अप टू 50 लाख, मगर पहले क्या था अप टू 25 लाख था, अप टू 25 लाख था, मगर अभी अप टू 50 लाख हम जो लॉन्ग अभी ये इंक्रीज होकर अप टू 50 लाख हो गया। तो हम एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे एंड कलेक्ट करेंगे जो कंसल्टिंग एजेंसीज के ऊपर हम जो लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, तो हम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, अदर डिपार्टमेंट्स की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, एसोसिएशंस ऑफ कंसल्टेंसी फर्म्स, ओके, उनसे डाटा कलेक्ट की लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और उसमें जो हमको अच्छा सर्विस देगा, जो लिस्ट प्राइस चार्ज करेगा, उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट हम प्रिपेयर कर दिए, एक प्रिपेयर लिस्ट हो गया पोटेंशियल कंसल्टेंसी का। फिर हम उनको एनालाइज करेंगे, जो कॉस्ट चार्ज कम करेगा तो हम उसको अवार्ड दे देंगे, मगर क्वालिटी को चेक करेंगे। जो कंसल्टेंट को हम हायर करेंगे वो अच्छा सर्विस हमको देगा और टाइम पीरियड में हमको सर्विस देगा, ठीक है। और यहां पर सेकंड आ गया, सेकंड क्या है, यहां पर आ गया ग्रेटर देन 50 लाख। पहले ये था ग्रेटर देन 25 लाख, अभी नहीं है, अभी आ गया ग्रेटर देन 50 लाख से। तो यहां पर हम एडवर्टाइजमेंट में चलेंगे। एडवर्टाइजमेंट में क्या है, हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, EOI, ऐसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जाएंगे। इसमें क्या होता है, ये पब्लिश होगा। तो ग्रेटर देन 50 लाख है जो एस्टिमेटेड कॉस्ट, हम एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे। तो फर्स्ट वन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली हम इनवाइट करेंगे। ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, तो खुद का वेबसाइट में अपलोड करेंगे, और जैसे बिडिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड होता है, और CPPP में अपलोड होगा और JM में अपलोड होगा। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी, ठीक है, क्वालिफिकेशन, ठीक है, और सपोज उनका जो बेसिकली हम इस चीज को चेक करेंगे कि उनका स्टेटस क्या है, वो कंसल्टिंग एजेंसीज का जो पास्ट स्टेटस, उनका एलिजिबिलिटी, उनका क्वालिफिकेशन, ये सब चेक करेंगे। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में वो जाता है। जैसे हम बिडिंग इनवाइट करते हैं, वैसे कंसल्टिंग एजेंसीज को जब हम हायर करेंगे, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट मोर देन 50 लाख से, हम फर्स्ट एक्सप्रेशन तो ऑफ इंटरेस्ट को जाएंगे। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यही होता है। उसमें क्या क्या होता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ओके, तो ये सब चीज को देखा जाता है। तो ये एडवर्टाइज बेसिकली है, ये एडवर्टाइज है, खुद का वेबसाइट में पब्लिश होगा, और हम CPPP में जाएंगे और JM में जाएंगे। तो ये एडवर्टाइजमेंट होता है। तो इसमें क्या है, हम ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में ये सब चीज आता है कि ब्रॉड स्कोप ऑफ वर्क और सर्विस, कि हम जो डिपार्टमेंट किस तरीके का इनपुट्स प्रोवाइड करेगा, इनपुट्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ये सब EOI में जाएगा, वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाएगा। क्या ब्रॉड स्कोप ऑफ वर्क और सर्विस होगा, और किस तरीके का इनपुट्स प्रोवाइड करेगा मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, एलिजिबिलिटी, प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ठीक है, तो कंसल्टेंट का पास्ट एक्सपीरियंस, ये सब जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया जाएगा। उसमें क्या होगा, क्या ब्रॉड स्कोप ऑफ वर्क क्या है, एलिजिबिलिटी, प्री क्वालिफिकेशन की, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कंसल्टिंग एजेंसी, ठीक है, और व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स एक्चुअली प्रोवाइड बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ये सब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाएगा। और सब कंसल्टिंग एजेंसी अप्लाई करेंगे, ओके। फिर अप्लाई करने के बाद हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। अप्लाई करने के बाद शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। एक इसके बाद जाएगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ये मेरा वीडियो पड़ा है, आप देखिए, ओनली अमाउंट को चेंज करना है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मैं इसको पूरा डिस्कस कर चुका हूं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट हो गया, कंसल्टिंग एजेंसी डाल दिए, फिर हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो शॉर्टलिस्टेड कंसल्टेंट्स है, उनको हम रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में उनका वो क्या है, दो प्रकार का बीड से, एक टेक्निकल बीड और एक फाइनेंशियल बीड, वो दोनों सबमिट करेंगे। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में सभी कंसल्टिंग एजेंसी अप्लाई कर दिए, हम उसको शॉर्टलिस्ट कर देंगे। शॉर्टलिस्ट के बाद हम क्या इनवाइट करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इसमें आएगा
टेक्निकल बीड और आएगा फाइनेंशियल बीड, ये वो सबमिट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे ना, दो मेथड से, एक है क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिस्टम, क्वालिटी ओके कॉस्ट बेस्ड सिस्टम QCBS के, और एक है लीस्ट कॉस्ट सिस्टम LCS। ये दो सिस्टम है, ये एक है ये एक है क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिस्टम। क्वालिटी कॉस्ट क्या है ना, आपका जो पैरामीटर होता है कि टेक्निकल और फाइनेंशियल के ऊपर कितना प्रोपोर्शन बेसिस में, सपोज टेक्निकल पैरामीटर्स 70 है तो फाइनेंशियल वो 30 होगा। तो मैक्सिमम ये जो है टेक्निकल पैरामीटर जो है ना वो 80 होगा, 80% होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 80% होगा। ये जो है टेक्निकल पैरामीटर मैक्सिमम 80% होगा, ठीक है, याद रखिए। और टेक्निकल पैरामीटर और फाइनेंशियल पैरामीटर जो QCBS है, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिस्टम, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिस्टम। तो मैक्सिमम टेक्निकल पैरामीटर कितना परसेंटेज होगा, मैक्सिमम 80%। सपोज टेक्निकल पैरामीटर भी 60 है तो फाइनेंशियल पैरामीटर 40 होगा, ऐसे मार्किंग होगा। तो मार्किंग होने के बाद जिसको ज्यादा मार्क मिलेगा कंबाइंड होकर तो उसको अवार्ड दे दिया जाएगा। वैसे ही एक लीस्ट कॉस्ट, जिसका कॉस्ट लीस्ट कॉस्ट बहुत कॉमन है, जो लीस्ट कॉस्ट चार्ज करेगा तो उसको हम इनवाइट करेंगे, उसको अवार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें, एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉमन, हम इनवाइट करेंगे, कंसल्टिंग एजेंसी अप्लाई कर दिए, फिर हम रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में उनका फाइनेंशियल बीड और टेक्निकल बीड को इनवाइट करेंगे। फिर दो सिस्टम है, QCBS और लीस्ट कॉस्ट सिस्टम है। थोड़ा मैं उसको आपको क्लैरिफाई किया, तो मेरा वीडियो भी है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। फिर हम नॉन कंसल्टिंग, ये लास्ट है। ये जो नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज, जो GFR रूल देखिए आप 201 में नॉन कंसल्टिंग सर्विस के ऊपर भी अमेंडमेंट हुआ है। अच्छा, नॉन कंसल्टिंग सर्विस में क्या क्या आता है? सपोज आप व्हीकल हायर करोगे, हायरिंग व्हीकल, हायरिंग सिक्योरिटी, ओके, हायरिंग फोटोग्राफर, तो ये सब आता है। हायरिंग व्हीकल, हायरिंग सिक्योरिटी, हायरिंग फोटोग्राफर, ये सब नॉन कंसल्टिंग सर्विस में आता है। समझ में आ गया? तो इसमें देखेंगे इसमें क्या चेंज हुआ कि पहले क्या था, अप टू ₹10 लाख था, अप टू ₹10 लाख, मगर अभी अमेंडमेंट होकर ये नहीं है, अभी अप टू ₹50 लाख हो गया। एस्टिमेटेड कॉस्ट अप टू ₹50 लाख। नॉन कंसल्टिंग सर्विस याद रखिए, हायरिंग व्हीकल, हायरिंग सिक्योरिटी, ये है। हायरिंग फोटोग्राफर अप टू ₹50 लाख हो गया। फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्स, हम यहां पर एडवर्टाइज नहीं करेंगे, कुछ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स से हम नॉन जो कंसल्टिंग एजेंसीज है उनका एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, जैसे ट्रेड जर्नल से, येलो पेजेस है, ट्रेड जर्नल से, और फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, फ्रॉम अदर मिनिस्ट्री, हम जो नॉन कंसल्टिंग एजेंसी है उनका एक लॉन्ग लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। तो उसमें हम जो लिस्ट कॉस्ट चार्ज करेगा और अदर जो चीज है कि हम उसको एनालाइज करेंगे, उनका पास्ट स्टेटस को देखेंगे, एलिजिबिलिटी की, प्री क्वालिफिकेशन, ये सब चीज को देखेंगे, और जो लिस्ट कॉस्ट चार्ज करेगा उसको दे दिया जाएगा। मगर इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा अप टू 50 लाख और लेस, ठीक है। तो यहां पर क्लियरली मेंशन है, द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शुड स्क्रूटिनाइज द प्रिलिमिनरी लिस्ट। द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट should scrutinize the preliminary list or likely contractors as identified as per rule 199 above। तो रूल 199 देखिए, फर्स्ट हम एक फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज से एक लॉन्ग लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, और जो एलिजिबल एंड कैपेबल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इश्यू लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी टू देम आस्किंग फॉर देयर ऑफर्स। तो उनको लिमिटेड टेंडर जैसा होता है, तो फर्स्ट हम एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जो कैपेबल कॉन्ट्रैक्टर्स है उनका एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, और शॉर्ट लिस्ट करके उसको लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में उनको इनवाइट करेंगे, ठीक है। और इनवाइट में यहां पर जो है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स होना चाहिए मोर देन 3, ये मोर देन 3 होना चाहिए, ग्रेटर देन 3, इट मींस एटलीस्ट 4 होना चाहिए, एटलीस्ट 4 होना चाहिए, शुड बी मोर देन 3, यहां पर दे दिया है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुड बी मोर देन 3 होना चाहिए। समझ में आ गया? तो फर्स्ट हम फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज से, कि जैसे अदर ऑर्गेनाइजेशंस, फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, फ्रॉम अदर मिनिस्ट्री, और फ्रॉम ट्रेड जर्नल और येलो पेजेस, ऐसे हम नॉन कंसल्टिंग एजेंसी का लिस्ट करेंगे,
और जो पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको शॉर्टलिस्ट करके उनको लिमिटेड टेंडर में इन्वाइट करेंगे, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में। और लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी करने के बाद माने इट मींस एटलीस्ट 4 होना चाहिए, इसमें भी एटलीस्ट, लिमिटेड टेंडर में वही होता है एटलीस्ट 4 और ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, मोर देन 3 होना चाहिए। जो नॉन कंसल्टिंग एजेंसीज आएगा मोर देन 3 होना चाहिए और एटलीस्ट सेम थिंग है, ठीक है। तो फिर हम उनको एनालाइज करके, ठीक है, फिर हम अल्टीमेटली अवार्ड दे देंगे, राइट। तो इट मींस लिमिटेड टेंडर में जाता है, मगर ये सब आता है अप टू 50 लाख, ठीक है। मगर यहां पर आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा ग्रेटर देन 50 लाख, ग्रेटर देन 50 लाख। पहले क्या था, जो ग्रेटर देन 10 लाख था, मगर ये मॉडिफाई हो गया, अभी ग्रेटर देन 50 लाख हो गया। ग्रेटर देन 50 लाख एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे, ओपन टेंडर में, CPPP पोर्टल जो www.eprocure.gov.in जेम और गवर्नमेंट का खुद का वेबसाइट है उसमें पब्लिश होगा, ठीक है। और उसमें हम इनवाइट करेंगे उनको कि बोलेंगे आप बीड सबमिट करो, तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा किस वेबसाइट में जाना है, बीड डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना है फ्री में, फिर ओपनिंग डेट क्या होगा और बीड सबमिशन डेट क्या होगा और बीडिंग डॉक्यूमेंट कब ओपन होगा, वो डिटेल्स दिया जाएगा। और कोई भी कोरिजेंडम है, कोई भी चेंजेस आया उसमें अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट और CPPP और जेम में, तो उनको पता चलेगा, ठीक है। और ये एडवर्टाइजमेंट होता है, तो द एडवर्टाइजमेंट्स फॉर इनवाइटेशन ऑफ टेंडर शुड गिव द कंप्लीट वेब एड्रेस, तो मैं अभी बता दिया। तो ये पूरा ओवरऑल अमेंडमेंट था, जो राइट साइड था वो अमेंडमेंट था। तो मेरा तो वीडियो पड़ा है, एक्सीलेंट GFR में डाला था, उसमें अमाउंट को चेंज कर दीजिए, जेम भी डाला हूं, वो अमाउंट को चेंज कर दीजिए प्लीज। So please, so thank you today for again you wait for the next video. So my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel. Please, with patience, try to listen the complete video. You can get complete information. Thank you and namaskar to all of you.